بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا ہو، تم، اولائی سب لوگ، تحبون تم محبت کرتے ہو، ہم ان سے، ولا اور نہیں، یحبون وہ محبت کرتے، تم سے، واو اور، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، بالکتابی کتابوں پر، کلی ہی ساری کی ساری، ہی ان کی، واو اور، اذا جب، لقوکم وہ ملتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ الگ ہوتے ہیں، عضو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پہ، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل آپ کہہ دیجئے، موتو تم مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان بے شک، اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم تم سارے کے سارے ایسے ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو تمہارے اوپر غصے کی وجہ سے یا تم سے نفرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ تم ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 119 ہے، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو سے یہ کہہ رہے ہیں اور ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ انتباہ فرما رہے ہیں، ان کو ایک چیز سے ڈرا رہے ہیں، اور ایک جو یہود و نصارہ ہیں ان کے رویے کے پیچھے چھپی ہوئی سازشیں اور ان کے طرز عمل کی حقیقت انسان کو ہم سب کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کو ڈائریکٹ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، کن سے؟ یہود و نصارہ سے، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ چونکہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل پڑھی تھی کہ اوس اور حضرج وغیرہ اور ایسے قبیلے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے پہلے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات تھے، اسپیشل یہودیوں کے ساتھ۔ تو اب جب وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو انہیں چونکہ اسلام رواداری اور اچھے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ تعلق نبھانے اور ان ساری چیزوں کی تاکید کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید اچھے بنائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کو قبول کریں۔ اس کے لیے ان کو اچھی ورڈنگ بھی کبھی کبھی بولنی پڑی، وہ بھی بولی ہے تاکہ وہ متاثر ہوں، وہ ان کی خاطر آ جائیں دین کی طرف۔ سب ان کے اندر ایک طرف تھی، تو یہ کہ اخلاق اچھے، قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور دکھاوا نہیں کرتے تھے کہ باہر سے نفرت، باہر سے محبت کا اظہار اور دل میں نفرت نہیں، بلکہ ان کا رویہ ہی محبت بھرا تھا، پیارا سا محبت بھرا رویہ ان کا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ اور اللہ پاک اب ان کو بتا رہے کہ ہاں تم تو ان سے محبت کرتے تھے، یعنی واقعی تم محبت کرتے تھے، تم دکھاوا نہیں کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی تم سے محبت نہیں کرتے، وہ یہودی تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان سے کرتے ہو، لیکن ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اچھا، کبھی اگر یہود و نصارہ سے بات ہو، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے سے نفرت نہیں کرتے، تم ہم سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ ہم تو ایسے، وہ کہیں گے کیوں؟ آپ کیسے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو؟ اتنا بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے، یہودیوں کی کتاب ہے تورات،
ईसाइयों की किताब है इंजील, ठीक है। हम तौरात को भी मानते हैं और इंजील को भी मानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, अदब एहतराम करते हैं, हम उन्हें अल्लाह की कुतुब समझते हैं। वो अलग बात है, जो चेंजिंग की है ना, वो अलग बात का टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल जो तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, हम उसको क्या करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। फिर इस तरह यहूद और नसारा के जो नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पे हम ईमान लाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम पे हम ईमान लाते हैं, बल्कि हम तो उनको अपना नबी समझते हैं। हम उनका अदब एहतराम करना, उनका ईमान इसलिए करते हैं कि हम उनको अपना नबी समझते हैं, अपने हमारे नबी हैं वो सारे अल्लाह की तरफ से भेजे गए। तो अब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि तुम तो ऐसा करते हो कि तुम उनसे मोहब्बत, और हम उनको दावे में ये कह सकते हैं कि हम तो तुम्हारे नबियों से नफरत नहीं करते, हम तो तुम्हारे नबियों का इनकार नहीं करते, और जबकि तुम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो। ठीक है, तुम कुरान करीम को नहीं मानते, हम तो तुम्हारी कुतुब को भी मानते हैं। तो ये सारी बातें फिर फरमाया वइज़ा लक़ूकुम, जब वो मिलते हैं तुमसे, अब उनका रवैया बयान किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, यहूदियों से हमारा पाला कम पड़ता है आजकल, तो पड़ता है, ये वही बात है, इंस्टाग्राम और क्या कुछ जो भी सोशल हैं, अपना आपस में ताल्लुकात की जो भी आजकल ज़राए हैं, इनमें जो है ना यहूद नसारा के साथ भी लोगों की दोस्तियाँ और ताल्लुकात हो जाते हैं। और फजूल में मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है कि घंटों बैठ के ऐसे बंदे से लोग बातें करते हैं जिसको जानते तक नहीं है, और अपने घर में माँ बहन बेटी बैठी होगी, तरस रही होगी, देख रही होगी कि ये बंदा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मेरे साथ बात कर ले, तो ये ऐसी बातें हो जाती हैं। तो बहरहाल अभी भी ऐसा हो सकता है कि उनके साथ बंदा मोहब्बत का रवैया रखे, लेकिन ये कि ये फिर भी शाज़ व नादिर चीज़ होती है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ यहूदी ईसाई तो नहीं लिखा हुआ, आम रवैये के अंदर भी ऐसा होता है कि जब कोई इंसान होता है ना, किसी से हम मोहब्बत करते हैं, अच्छा अगर हमारे दिल साफ़ हैं, पाक हैं, तो बाज़ औक़ात हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनके साथ हम मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे उस तरह ख़ार नहीं होते। ठीक है, ऐसा आम ज़िंदगी में भी होता है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत मुबारका को ये नहीं कहती कि वो सिर्फ़ हमारे लिए या इन रवैयों के लिए है, लेकिन चूँकि इससे मिलती-जुलती बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, वरना आयत मुबारका के अंदर तो यहूदियों की बात की गई है। तो अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब वो तुम्हारे पास आते हैं, लक़ूकुम इल्का से है, मुलाकात से है, जब वो तुमसे मिलते हैं, तुमसे मुलाकात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, यानी वो कहते हैं हम मोमिन हैं। जब उनको ये दावत दी जाए ना यहूदियों को, तो वो कहते हैं हम कौन सा ईमान लाए, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम तो मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, अब कौन सा और ईमान चाहिए आपको। तो फिर बाद सादा लोग मुसलमान क्या समझते थे, हाँ ये तो मोमिन है ना, इन्होंने अल्लाह को तो मान रहे, चलो ठीक है मुसलमान कुरान करीम को नहीं, लेकिन नहीं, जो कुरान को ना माने, अक़ीदत जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माने, उसका ईमान काबिल एतबार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक रवैया बयान किया जा रहा है, अल्लाह पाक एक सबक दे रहे हैं हमें, वो क्या है कि जब वो अलग होते हैं, सामने आते हैं, तो कहते हैं हम तो ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, तुम्हारा हमारा खुदा एक है, रब एक है, क्यों हमसे दूर होते हो, हमारे साथ मिलो बैठो उठो, हम फ्रेंड्स हैं, सारा कुछ। लेकिन जब वो अलग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अद्दू अद्दू काट डालते हैं, ये चुबाने लगते हैं तुम्हारे ऊपर अनामिला उंगलियां, मिनल गैज़ी, गुस्से से। जब कोई बहुत शदीद छोटे बच्चे हैं ना, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा डांटें और वो बहुत गुस्से में हो, लेकिन उनका बस ना चले ना, उनके बड़ों पे बस नहीं चलता, तो फिर वो क्या करते हैं, वो कभी-कभी अपनी उंगलियां काटने लगते हैं, पूरे काटने लगते हैं, मुंह में डाल देते हैं अपने हाथ गुस्से से। और ऐसा होता है जब हद से ज़्यादा किसी पे गुस्सा हो और बंदा उसको कुछ कह ना सकता हो, तो फिर अपने आप को अज़ियत दे देता है, कभी अपने आप को तकलीफ देने लगता है। अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, कभी हो भी तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, तावज़ पढ़ना चाहिए। तो अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे सामने आते हैं तो ईमान का दावा करते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, लेकिन जब अलग होते हैं तो तुम्हारे ऊपर गुस्से की वजह से उंगलियों की पोरें काटने लगते हैं, उंगलियां काटने लगते हैं, यानी इतना शदीद गुस्सा, इतनी नफरत, इतना तुम्हारे बारे में इनके कीना हसद बुग़्ज़ इनके दिलों में होता है। तो ये बात जो है ना, वो कुल आप कह दीजिए मूतू, तुम मर जाओ बेग़ैज़िकुम, अपने गुस्से से। इन अल्लाह पाक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप उनसे ये कह दीजिए कि तुम अपने गुस्से के साथ मर जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि जो हासिदीन होते हैं ना, जो जलने कूदने वाले और गुस्सा करने वाले और मुंह पे कुछ कह ना सकने की हिम्मत रखने वाले लोग, इनको हिम्मत नहीं होती थी ना, वरना इनका तो दिल चाहता था कि मुसलमानों को मुंह पे कह दे कि हम तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारे नबी को, तुम्हारे कुरान को, लेकिन मफाद परस्त थे। मफाद की खातिर क्या करते, झूठ बोल देते थे, मुसलमान होने का दावा करते थे। हालांकि जब आम जिंदगी के अंदर
आम जिंदगी में भी ये होता है कि जब किसी पे बस नहीं चलता ना इंसान का, यानी कुछ कर नहीं सकता उसके ऊपर, तो फिर वो क्या करता है, उंगलियां काटता है। मुंह पे तो जब जाता है मीठा बन जाता है, शीरी जबान और अच्छे अखलाक और सब कुछ, लेकिन जब तन्हा होता है, अकेला होता है, तो फिर क्या होता है, गुस्से से अपनी उंगलियां काटने लगते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते और अपने आप को अजियत देना शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम उनको क्या कितना समझाओगे, इनके अंदर से हसद, बुग़्ज़ और ये नफरत, और तुम्हारी नफरत और इस्लाम की ये सारी चीजें नहीं निकलेंगी। तुम ये कर दो कि तुम उनसे कह दो कि अपने गुस्से के साथ मर जाओ। यानी गुस्से के साथ मर जाओ का मतलब ये कि तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होने वाला, तुम्हारा गुस्सा ठीक नहीं होने वाला, तुम इसी गुस्से के साथ मरो और इसी तरह तुम्हारी मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। हमारी जिंदगी के अंदर अगर कोई ऐसा रवैया है कि कोई इंसान जो वो दिखने में सब ठीक है, इस्लाम, दुआ, बोल चाल, अच्छी गपशप, बैठे उठे सब कुछ, लेकिन जो ही अपने नजरों से ओझल हुए तो बिल्कुल भजारी ज़बान, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, नफरत, और फिर बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बातें और ये सारी चीज़ें, और जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर यह कि उंगलियां काटने लगते हैं। उनके बारे में भी ये है कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी होती है ऐसे लोगों के रवैये से, तो फिर तुम क्या करो, उनसे कह दो कि अपने गुस्से के साथ मर जाओ। यानी वो उनको, उनका गुस्सा जो है, उनकी नफरत, उनका बुग़्ज़, हसद उनको दुनिया की चैन की नींद नहीं सोने देगा, चैन से कोई काम नहीं करने लेगा। तो लिहाजा वो इस हसद को नहीं छोड़ेंगे। ये चीजें उनके अंदर रच बस जाती हैं। हाँ, अल्लाह का कुरान दावत दे रहा है कि ऐसी गलत बात नहीं होनी चाहिए, जो जाहिर और बातन एक होना चाहिए, क्योंकि ये मुनाफिकत है कि बंदा जाहिर से कुछ और कहे, मीठा बने और गपशप कहे, और फिर तन्हाई में वो कुछ और करे। तो अल्लाह फरमा रहे कि उनको कहो कि तुम अपने गुस्से के साथ मर जाओ, यानी कि अब तुम ऐसा कुछ न, तुम कुछ और छोड़ नहीं सकते, छोड़ना तो चाहिए तुम्हें, लेकिन अगर नहीं छोड़ रहे तो फिर अपने गुस्से के साथ मर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज जानने वाला है। मेरी प्यारी बहनों, इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक होता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक बात अगर आपके ज़हन में आ रही हो कि फिर इंसान अगर हमारे साथ बुरा रवैया कर रहा है तो हमें उसके मुंह पे भी कहना चाहिए कि हमें तुमसे नफरत है, तुम हमें बुरे लगते हो, तुम्हारी बातें हमें बुरी लगती हैं, ये सारा कुछ मुंह पे कह देना चाहिए, नहीं, और मुंह पे मीठा नहीं बनना चाहिए जिस तरह ये लोग करते हैं। नहीं मेरी प्यारी बहनों, ये बात नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ है, किसी ने आपके साथ ज्यादती किया और आप उससे ज्यादती का बदला नहीं ले रहे, क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे राजी हो जाए। बदला लेना और जवाब में भी वही नफरत, हसद, बुग़्ज़ करना, कीना, चुगली और ये सारी चीजें करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हम उनसे ये कह दें कि तुम उनसे नॉर्मल रवैये में बात करें, तो अगर हमारी नीयत खराब नहीं है ना, नीयत ये है कि अच्छे अखलाक होने चाहिए, ठीक है, किसी ने मेरे साथ क्यों मुझे बुग़्ज़ है, क्यों उससे हसद, वो हसद तो नहीं है, लेकिन क्यों मुझे उससे नफरत है, या क्यों मुझे वो बंदा नहीं पसंद, तो उसके बारे में फिर बंदा ये है कि उसने कुछ ज्यादती की है, जुल्म किया है, लेकिन बंदा ये सोचे कि ठीक है इसने तो किया है, लेकिन मैं इससे ऐसी तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की बंदी हूँ, अल्लाह मुझे नेक बनाए, मैं नेक बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो अपना कुरान पढ़ रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? ठीक है, मैं क्या करूंगी, जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उससे अच्छे अखलाक से पेश आऊंगी। लेकिन तन्हाई में कभी कभी होता है कि उस बंदे ने रवैया ऐसा किया होता है, या उसके बावजूद भी, उसके बुरे रवैये के बावजूद जब उसको बुलाया जाए, उससे मिला जाए, उससे अच्छे अखलाक से पेश आ जाए, फिर भी वो कुछ नुकसान पहुंचाने से बाज ना आए, तो फिर क्या होगा? फिर अगर बंदा अकेले में गुस्सा कर रहा हो और फिर सामने कुछ ना कहीं बर्दाश्त कर रहा हो, तो इस पे भी इंसान को अजर मिलेगा। इस पे भी ये है कि उसको ये देख देख के सोचा करो, कितना प्यारा वर्ड है कि कोई आपसे हसद कर रहा है, जल रहा है, कोई बहुत नफरत कर रहा है, बहुत अच्छा करके भी वो आपसे नहीं ठीक हो रहा, तो फिर कह दिया करें दिल में कि तुम अपने गुस्से के साथ मर जाओ, मैंने तो तुमसे नाराज नहीं होना, मैंने कोई फितना नहीं करना, मैंने कोई बात नहीं बढ़ानी, मैंने किसी को जाके बातें नहीं बतानी, कुछ भी नहीं करना। लेकिन ये है कि तुम जो है ना, तुम जो भी इंसान हसद करता है ना, जलन करता होती है उसे, तो वो अपने गुस्से के साथ ही मर जाता है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह तो सीनों के राज जानने वाला है, दिल के राज, सामने की बातें नहीं जो हमने छिपाई बेड के नीचे, ऊपर कपड़े का कबट में, और कोई चीज छुपाई और सारा कुछ हम कहें कि वो चीज नहीं मिल रही या कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं पता। अल्लाह तो सीनों के राज, यानी कि कोई की जगह पे रखी हुई चीज या कुछ अल्लाह को पता होता है। अल्लाह सीनों के अंदर मौजूद बात, इंसान इतना मीठा, वो ऊपर बात हो रही थी ना कि जब अगर मैंने कहा कि अच्छे अखलाक हो, तो फिर हम किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं कि उसने ज्यादती की, जुल्म किया, लेकिन हमें दुख है, अफसोस है, लेकिन फिर भी हम उसे कुछ नहीं कह रहे, अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं। मकसद, नीयत तो अल्लाह को पता है ना, अल्लाह को पता है कि हम किस गर्ज से उस बंदे
بندے کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہے ہیں تو اگر ہم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک رکھ رہے ہیں تو یہ ہماری عظمت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بتا دی کہ علیم بذات الصدور، اگر تم باہر سے کسی سے کوئی خاص نفرت نہیں کرتے، دل میں بھی تمہارے کوئی نفرت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بظاہر تم بہت میٹھے نہیں بن رہے لیکن دل میں تمہارے کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت سینوں کے راز جانتا ہے، اس اللہ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم سوچ بھی رہے ہوں کوئی گناہ تو وہ گناہ کر بھی پائیں یا نہیں، لیکن اس کے سوچنے کی وجہ سے بھی گناہ مل جائے گا۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، علیم بذات الصدور یہ والی آیت صرف یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اس جملے کے اوپر ہمیں ایمان ہو جائے، یقین ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی، کہ اللہ سینوں کے راز جانتے ہیں۔ میں کیا دکھاوا، کیا تقریر، کیا سپیچ، کیا سمجھانا، اللہ کو تو پتہ ہے میرے سینے کے اندر کیا ہے۔ تو اس سینے کو صاف کرنا پڑے گا نا، اتنا بڑا کہنے سے پہلے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سینے صاف کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔